اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایڈن گارڈن ٹائمز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کے لیے انگریزی حروف تہجی یعنی الفابیٹس کے لحاظ سے پوری دنیا سے ممالک کی ڈاکیومنٹریز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم 11 ویڈیوز الفابیٹ اے کے حوالے سے بنا چکے ہیں اور آج الفابیٹ بی سے پہلی ویڈیو بنائیں گے جو مجموعی طور پر ہماری 12ویں ویڈیو ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ دا بہامس۔ دا بہامس، جس کا سرکاری نام کامن ویلتھ آف دی بہامس یا دولت مشترکہ بہامس ہے، یہ ملک کیریبین سمندر کے بیچ ویسٹ انڈیز کے علاقے میں لیوکائن جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ جزائری ریاست بحر اوقیانوس کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے جزیروں اور سمندری ٹاپوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ کیوبا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے شمال، ٹرکس اور کائکوس جزائر کے جنوب، امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق اور فلوریڈا کیز جزائر کے مشرق میں واقع ہے۔ محترم ناظرین، آئیے تاریخ سے کچھ اوراق پلٹتے ہیں۔ بہامس کے پہلے باشندے ٹائنو نام کے قبائلی تھے۔ یہ لوگ 800 سے 1000 عیسوی میں کیوبا اور ہسپانیولا کے جزائر سے ہجرت کر کے ان جنوبی جزائر پر آ بسے۔ ان لوگوں کو لیوکائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب 1492 عیسوی میں کرسٹوفر کولمبس پہلی مرتبہ یہاں پہنچا تو لیوکائن لوگوں کی تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ کولمبس پہلی مرتبہ جس جزیرے پر اترا اس نے اس کا نام سین سیلواڈور رکھا۔ یہاں اس کا پہلا رابطہ لیوکائن لوگوں سے ہوا۔ اس نے ان کے ساتھ مختلف اشیاء کا تبادلہ کیا۔ 1494 میں ایک معاہدے کے تحت بہامس کا علاقہ اسپین کے کنٹرول میں آ گیا۔ اسپین نے یہاں پر کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی، البتہ اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کو غلام بنا کر ہسپانیولا لے جا کر زبردستی مزدوری کروانی شروع کر دی۔ غلاموں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے جن کے خلاف ان میں مدافعت نہ تھی۔ آدھی سے زیادہ ٹائنو آبادی چیچک کا شکار ہو کر لقمہ اجل بنی۔ 1648 میں پہلے انگریز آبادکار ان جزائر پر پہنچے۔ انہوں نے اپنی پہلی آبادی ایلیوتھرا کے نام سے قائم کی۔ یہ آنے والے پیورٹن کرسچن تھے۔ ان کے لیڈر نے اپنے نام پر سیلز آئی لینڈ آباد کیا جو بعد میں نیو پروویڈنس کے نام سے مشہور ہوا۔ 1670 میں کنگ چارلس سیکنڈ نے یہ جزائر لارڈز پروپرائٹرز کو دے دیے۔ پروپرائٹر کے دور حکومت میں بہامس بحری قزاقوں کی جنت بن گیا، جن میں مشہور زمانہ بحری قزاق بلیک بیئرڈ پیش تھا۔ بہامس پوری دنیا میں پائریٹ ریپبلک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پائریٹ ریپبلک کے ہاتھ میں اور ایک منظم حکومت قائم کرنے کے لیے برطانیہ عظمیٰ نے 1718 کو بہامس کو اپنی کراؤن کالونی کا درجہ دے دیا۔ وڈز راجرز کو گورنر بنایا گیا جس نے کافی حد تک بحری قزاقی کو دبانے کی کوشش کی۔ 1729 میں مقامی اسمبلی نے انگریز آبادکاروں کو ذاتی حکومت بنانے کے اختیارات دے دیے۔ امریکہ کی جنگ آزادی کے دوران امریکی بحری بیڑے نے 1776 عیسوی میں ناسو شہر پر قبضہ کر لیا۔ چند دن بعد انہوں نے شہر خالی کر دیا۔ 1782 میں ایک ہسپانوی بحری بیڑے نے ناسو شہر پر حملہ کیا اور پورے کا پورا شہر بغیر کسی رکاوٹ کے ہسپانویوں کی جولی میں آ گرا۔ اگلے ہی سال ٹریٹی آف پیرس کے تحت اسپین نے شہر واپس برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ امریکہ کی آزادی کے بعد برطانیہ نے اپنے 7300 لائلسٹ کو ان کے افریقی غلاموں سمیت بہامس میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں کو کاشتکاری کے لیے زمین فراہم کی گئی۔ انہوں نے کئی جزیروں پر شجرکاری اور فصلیں اگانا شروع کر دیں۔ یہ لوگ دارالحکومت کے اندر ایک سیاسی قوت بن کر ابھرے۔ پھر ایسا ہوا کہ یورپین امریکن کے مقابلے میں ان کے ہی لائے ہوئے غلاموں کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ 1807 میں برطانیہ نے غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ ہزاروں غلاموں کو بحری جہازوں سے آزاد کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کا آغاز بہت سارے بہامین کے لیے مشکلات لے کر آیا۔ معیشت بدحال اور غربت نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اگست 1940 میں ڈیوک آف ونڈسر کو دا بہامس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے 29 اکتوبر 1940 کو مقامی پارلیمنٹ کو قائم کیا۔ ڈیوک نے جزائر میں غربت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ ڈیوک نے 16 مارچ 1945 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بہامس میں جدید سیاسی پیش رفت دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی۔ 1950 کی دہائی میں نئی سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں۔
UBP यूनाइटेड बहामियन पार्टी और PLP प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी। UBP यानी यूनाइटेड बहामियन पार्टी का ताल्लुक अंग्रेज बहामियन से था, जबकि PLP यानी प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी का ताल्लुक एफ्रो बहामियन से था और ये लोग अक्सरियत में थे। 7 जनवरी 1964 को सर रोलैंड को पहला वजीर आजम मुकर्रर किया गया। उनका ताल्लुक यूनाइटेड बहामियन पार्टी से था। 1968 में लिंडन पिंडलिंग, जिनका ताल्लुक प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी से था, ये बहामस कॉलोनी के पहले स्याह फाम वजीर आजम मुकर्रर हुए। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 22 जून 1973 को बहामस को मुकम्मल आज़ादी देने का ऐलान कर दिया। शहजादा चार्ल्स ने दस्तावेजात वजीर आजम लिंडन पिंडलिंग के हवाले कर दी और 10 जुलाई 1973 को द बहामस को एक आज़ाद कौम का दर्जा हासिल हो गया और यही दिन द बहामस का कौमी दिन भी है। इसी दिन बहामस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर बना। 22 अगस्त 1973 को द बहामस ने IMF और वर्ल्ड बैंक में शमूलियत इख्तियार की। 18 सितंबर 1973 को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी बन गया। अगली 2 दहाइयों तक पिंडलिंग की PLP का सियासत पर राज कायम रहा। इस दौरान जजायर पर टूरिज्म और ऑफशोर फाइनेंस ने तरक्की की। लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हुआ। 1992 में FNM के ह्यूबर्ट इंग्राहम ने पिंडलिंग को शिकस्त दे दी। 1997 के इंतखाबात तक इंग्राहम फाते रहा। 2002 में इंग्राहम को शिकस्त हुई और PLP के पैरी क्रिस्टी इंतखाबात जीत गए। इंग्राहम दोबारा 2007 से 2012 के लिए बरसरे इक्तदार आए। इसके बाद अगली टर्म में 2012 से 2017 में क्रिस्टी दोबारा कामयाब हुए। 2017 में FNM के ह्यूबर्ट मिनिस मुल्क के चौथे वजीर आजम बने। मुख्तरम नाजरीन, द बहामस 800 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए जजायर की एक जंजीर पर मुश्तमिल है जो बहरे उकियानूस में वाक़या है। बहामस छोटे बड़े 700 जजायर पर मुश्तमिल है। नासाउ, जो द बहामस का कैपिटल सिटी है, न्यू प्रोविडेंस जजीरे पर वाक़या है। दूसरे ज्यादा आबादी वाले जजायर में ग्रैंड बहामा, एल्यूथ्रा, कैट आइलैंड, रुमके, लॉन्ग आइलैंड, सैन सैल्वाडोर आइलैंड, रैग्ड आइलैंड, क्रूक्ड आइलैंड, एक्ज्यूमा, बेरी आइलैंड्स, ग्रेट अबाको और सबसे बड़ा जजीरा एंड्रोस है। तमाम जजायर इंतहाई नशेब में वाक़या हैं और हमवार हैं। इनकी सतह समंदर से बुलंदी 15 से 20 मीटर यानी 49 फुट से 66 फुट के दरमियान है। मुल्क की सबसे बुलंद जगह माउंट एल्वर्निया है जो कैट आइलैंड पर वाक़या है। इसकी बुलंदी सतह समंदर से सिर्फ 64 मीटर यानी 210 फुट है। अगर बहामस के मौसम और आबो हवा की बात की जाए तो यहाँ 2 किस्म के मौसम आते हैं, एक शदीद गर्म और मरतूब, जबकि दूसरा गर्म और खुश्क। कम अर्जबल्द, गर्म इस्तवाई खलीजी बहाव और सतह समंदर से कम बुलंदी के बायस बहामस की आबो हवा गर्म और बगैर सर्दियों के है। अब हम बात करेंगे हुकूमत और सियासत की। बहामस में पार्लिमानी आईनी बादशाहत कायम है। रियासत की सरबराह मलका एलिजाबेथ दोम है, जिन्हें गवर्नर जनरल की हैसियत हासिल है। सियासी और कानूनी रवायात में बरतानिया उज़्मा की पैरवी की जाती है। बहामस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर मुल्क है। गवर्नमेंट का सरबराह वजीर आजम होता है जो हाउस ऑफ असेंबली की अक्सरियती पार्टी से मुंतखब होता है। बहामस के अमेरिका और बरतानिया दोनों के साथ करीबी सफारती ताल्लुकात हैं। इसके अलावा कैरेबियन कम्युनिटी के साथ भी बहामस के अच्छे तजारती और सफारती ताल्लुकात हैं। बहामस के कौमी झंडे की मंजूरी 1973 में दी गई। इसके रंग बहामस के लोगों की ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। इसका डिजाइन सूरज और समंदर की नुमाइंदगी के साथ साथ मुआशी और समाजी तरक्की की अलामत है। बहामस का कौमी फूल येलो एल्डर है। ये सारा साल उगता है और पूरे बहामस में पाया जाता है। GDP पर कैपिटा के लिहाज से दोनों अमरीकी बरआज़मों में बहामस अमीर तरीन मुल्क है। इसकी करेंसी बहामानियन डॉलर है। एक बहामानियन डॉलर में 168 के करीब पाकिस्तानी रुपए आ जाते हैं और एक बहामानियन डॉलर में 75 के करीब इंडियन रुपए आते हैं। इसी तरह एक बहामानियन डॉलर में 84.80 बांग्लादेशी टके आ जाते हैं। बहामस की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार टूरिज्म इंडस्ट्री पर है। टूरिज्म के बाद ज्यादा अहम शोबा बैंकिंग और ऑफ शोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तीसरे नंबर पर ज़राअत, कुदरती वसाइल और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे आते हैं। बड़ी फसलों में प्याज, ओकरा, टमाटर, संगतरे, ग्रेप फ्रूट, खीरा, गन्ना, लीमू, शकरकंदी वगैरह शामिल हैं। बहामस की आबादी 3,90,000 से ज्यादा है। 1722 ईस्वी में बहामस में 74% यूरोपियन और 26% मकामी अफ्रीकी लोग आबाद थे, जबकि ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त यहाँ 90% से जायद ब्लैक पीपल यानी स्याह फार्म लोग, जबकि सफेद फार्म सिर्फ 4.7% आबाद हैं। जजायर की आबादी की अक्सरियत ईसाईयत मजहब की हामिल है।
80% प्रोटेस्टेंट और 14.5% रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं। बहामस की सरकारी ज़बान इंग्लिश यानी अंग्रेजी है। ज्यादातर लोग इंग्लिश बेस्ड क्रियोल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के कल्चर की। बहामस की सकाफत अफ्रीका, बरतानिया और अमेरिका की सकाफतों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। एक किस्म का अफ्रीकी जादू ओबी आज भी फैमिली आइलैंड्स पर बाज बहामानी खानदानों में जेर इस्तेमाल है। अगरचे ये बहामस में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग इस पर यकीन रखते हैं। कम तरक्की याफ्ता जजायर पर खजूर के पत्तों से बनी टोकरियां, बैग वगैरह सियाहों के लिए इंतहाई दिलकशी का बायस होते हैं और मकामी लोगों के रोजगार का सबब बनते हैं। वुडू डॉल्स, जो जादू टूने में इस्तेमाल होने वाली गुड़िया है, मकामी तौर पर इसकी खरीदो फरोख्त भी आम है। हर बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर्स डे पर नासो में एक स्ट्रीट परेड का इख्तिताम होता है। इस स्ट्रीट परेड को जुनकानू कहते हैं। ये भागदौड़, हल्ला गुल्ला, मौसीकी और डांस से भरपूर होती है। मुख्तलिफ जजायर में रेगाटा नाम का इवेंट भी मनाया जाता है। इसमें लोग पुराने स्टाइल की कश्तियों पर कश्ती रानी के मुकाबले करते हैं और साहिल पर एक मेले का इनेकाद भी किया जाता है। बहामानी खानों में कैरेबियन, अफ्रीकन और यूरोपीय असरात वाज़े तौर पर नजर आते हैं। खेल तमाशे बहामियन कल्चर का लाजमी हिस्सा है। कौमी खेल क्रिकेट है, जो यहाँ 1846 से खेला जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बहामास वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं। सरपरस्ती ना होने के बायस क्रिकेट का खेल जवाल पजीर है। दूसरे मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल शामिल हैं। बहामास का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ बहामस है। बहामस में 1620 किलोमीटर तवील पुख्ता सड़कें हैं। बैनुल जजायर सफर के लिए हवाई और बहरी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में 61 हवाई अड्डे हैं। इनमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट लिंडन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुहतरम नाजरीन, द बहामस के हवाले से मजीद चंद दिलचस्प हकायक पेशे खिदमत हैं। द बहामस दुनिया के उन 6 ममालिक में शामिल है जिनके नाम के आगाज में अंग्रेजी लफ्ज THE द आता है। द मालदीवीज, द गैम्बिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नेदरलैंड्स और द बहामस। बहामस के बिग मेजर के आइलैंड को पिग बीच भी कहते हैं। यहाँ बेशुमार पिग्स यानी सुअर छोटे पानियों में ऊँगते हुए नजर आते हैं। मशहूर जमाना हलाबाज क्रिस हैडल्ड से पूछा गया, खलाओं की बुलंदियों से नजर आने वाली सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो उसने बरजस्ता कहा, बिलाशुबा द बहामस। बिलाशुबा द बहामस के जजायर सबसे शानदार हैं। बहामस के लोगों की अक्सरियत मोटापे का शिकार नजर आती है। बहामियन अमेरिका के मुकाबले में 35% ज्यादा मोटे हैं। बहामस के लोग खेलों से इश्क करते हैं। इतनी कम आबादी के बावजूद वो अब तक 14 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। मशहूर जमाना कॉफी हाउस स्टारबक्स की 10 ब्रांचें बहामस में अपनी खिदमात सरंजाम दे रही हैं। दुनिया के बड़े एक्वेरियम में से एक एटलांटिस पैराडाइज आइलैंड पर वाक़या है। इसमें 8 मिलियन गैलन पानी और 250 अक़साम के 50,000 आबी जानवर सियाहों की तवज्जो का मरकज है। बहामस में पिंक सैंड्स के नाम से गुलाबी साहिल या पिंक बीच भी लाखों सियाहों की तवज्जो हासिल करता है। लॉन्ग आइलैंड पर वाक़या डीन्स ब्लू होल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसकी गहराई 202 मीटर है। बहामस बरमूदा और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। बहामस में एक ज़ेरे आब सड़क भी है, लेकिन आप इस पर सफर नहीं कर सकते। ये दर हकीकत पत्थरों की एक कुदरती बनावट है। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि ये गुमशुदा अफसानवी शहर एटलांटिस का कोई हिस्सा है, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं द बहामस के हवाले से दिलचस्प हकायक से भरपूर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।